Hello students, welcome to my YouTube channel again. Today we are starting with the exercise 2.5. We have done 3 questions, class 9 maths, chapter 2 polynomial. We have done 3 questions using the identities. Now we will have to do the next 4, 5, 6 जितने भी questions आज होते हैं उतना हम कोशिश करेंगे करने का. Clear? In the last video we did all the questions of about a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, and x plus a, x plus b. Fine. This we have done till here. Now, question, if we talk about the question number 4, this is x plus 2y plus 3z whole square. जो भी questions मेरे पास हैं, all those are the squares of the 3 terms, whether they are plus or minus. वो एक अलग बात है, ठीक है. तो we learned one identity. We studied one identity. क्या identity पढ़ी थी हमने? That was x plus y plus z whole square. ये पढ़ा था हमने. And I told you this is nothing but equals to x square plus y square plus z square. पहले तो जितनी भी आपके पास terms है, whatever terms you have, just do square of all the 3 terms. X square plus y square plus z square. After that, you take plus twice of pairwise. Once xy, then once yz, twice again, and plus yxz. Why I have taken plus all? Because my all the terms are in plus sign, plus x plus y plus z. Suppose I have to change this identity, like if we have x minus y plus z whole square, then what it will be? It is simple, don't memorize the things. It will be what? X square plus y square plus z square. These 3 terms will remain same, whether x is x, y, z, either of plus minus sign or all plus or minus, anything it can be. Fine. The difference comes when we write down 2xy, 2yz and 2zx. If I talk about 2xy, it will be of plus sign or minus sign. Twice तो होता ही है. X is of plus and y is of minus. So plus minus is what? Minus. So here we will have minus sign. If we talk about these two, minus plus, so it will be minus 2yz. And if we talk about this xz, this is plus, this is also plus, so it will be plus 2xz. Like this we have to apply this identity. If we talk about question number 4, if we come to on this question, see, this is the first part. We can apply the identity directly. This is my x, this is my y, and this is my z. Clear? All are of plus, so question becomes very simple. So if we apply directly, it will become what? It will be x square. X कितना है हमारे पास? यहाँ पे x है तो x square. Then we have y square. Y square is what? Instead of y we have 2y. So this is 2y whole square. Don't write. बच्चे क्या लिखते हैं? बच्चे लिखते हैं 2y square. बच्चा ये wrong होता है. 2y whole square लिखना है आपने. Clear है बात? ये नहीं लिखना आपने. यही आप mistakes करते हो. Plus. Now we have 4z. ये स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे आएगा पूरे का स्क्वायर. आ रही बात समझ में? Then we have twice of xy. What is x? Twice of x into y is 2y. Then plus twice of yz. आप आगे पीछे कर सकते हो टर्म्स का, ऐसा कुछ नहीं है. Plus twice of xz. First we have applied the identity. Now just solve it. It will be what? It will be x square only. Plus it will be what? 2 square is 4 and y square is y square only. Plus 4 square is 16 and z square is z square. What it will be? 2 to 4 x y. Clear? And it will be what? This you have learnt in 8th class, how to multiply the given polynomial to the given polynomial. ठीक है? This is 2 to 4, 4, 4, 16. So it will be 16 yz will remain as it is, plus it will be what? 2 into 4 is 8 and xz will remain as it is. So this is the answer of your question. This is one step, this is second step. Second step mein you got your answer using the identity. Clear? So this was your first part. Fine. In this question we are given 6 parts. I'll explain part 1, part 3 and part 6 with you. The rest of the parts you will solve yourself and you will tell me the answers in the comment section.
If you any doubt, let me know. I'll explain it again in the next video for you. Clear? So this was your first part, using the identity, and you will solve these two questions only using this identity only. हमें सारी अलग से करने की जरूरत नहीं है. Fine? Now see, if you talk about the third one, it is minus 2x plus 3y plus 2z whole square. So what will you do? Now this time this is your x, this is your y, this is your z. And don't see this now. इसको मत देखो. You just go from this only. एक से करो, बहुत सारी करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसके मतलब क्या आएगा? सबसे पहले x स्क्वायर, सो ये हो गया x स्क्वायर. प्लस माइनस का ध्यान रखना. y स्क्वायर इज व्हाट? 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर. ये तो हो गई होल स्क्वायर की बात. नाउ वी टॉक अबाउट 2xy प्लस 2. What is x? X is minus 2x. And what is y? Y is 3y. Plus, what is next? 2yz, 2, y and z. Now it will become simpler. कुछ अच्छा लग रहा है? Twice of minus 2x into 2z. Now we can simplify this in the next step and we will get our answer. It is minus 2 is what? Minus का square plus होता है 2 का square 4. So this is 4x square plus this will be 9y square. This will be 4z square. Till here it is clear. It will be what? Plus minus, पहले तो आ गया माइनस का साइन. 4 into 3 12xy. Then it is we have 2x 2 3 2. कितना हो गया? 12. So plus 12yz. Fine. Plus minus again minus 2 2 4 4 into 2 8 8xz. This is your answer. In the two steps, we got our answer very easily. Fine. This was your part 3. Clear? Now if we see the sixth part. बच्चों को सिक्स पार्ट से थोड़ा डर लगता है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है. We'll apply the same identity. What it will be? This complete is x, this complete is y, and the last one is z. So what is x square? X square is 1 by 4a whole square. What is y? 1 by 2b whole square. अब बच्चे क्या लेते हैं इसको? हम माइनस लेते हैं. नहीं लेना, लेना है तो भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. प्लस इट विल बी व्हाट? बिकॉज माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ये ले लो, ठीक है. प्लस ये हो गया ऐसे, ठीक है. नाउ प्लस 2xy 2x एंड इट इज y, ठीक है. प्लस 2yz प्लस 2xz. So if we solve our answer, it will what? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा. तो जितनी भी टर्म्स है अंदर सबका स्क्वायर आपने लेना है. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, b का b स्क्वायर. 1 का रहेगा सेम, प्लस माइनस पहले आ गया माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद ab डिवाइड बाय 4. This is cancel out, plus minus again minus, the answer is B here, and this is 1 by 2, so this is A by 2. This is your answer of this question. इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Nobody can cut your marks. Fine. LCM लेना है LCM ले दो, doesn't make any difference. So this is your part 6 of question number 4, exercise 2.5. See, clear? Now we move on to next part. See. Now move on to question number 5. Factorize. We have two parts. देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था यहाँ से यहाँ, हम गए थे लेफ्ट टू राइट. इन दिस क्वेश्चन वी विल गो राइट टू लेफ्ट. क्यों?
देखो यहाँ पे पहले तो किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं दिया हमको, तो वी कैन अप्लाई इट एनी ऑफ द आइडेंटिटी। बट मैंने आपको बोला था अगर हम आइडेंटिटी दी है तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम जाएंगे राइट से लेफ्ट पे। देखो कैसे, इसकी राइट में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स वी हैव। हियर आल्सो वी हैव 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वी विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब वो किसका होल स्क्वायर बनेगा, क्या होगा अंदर, एक्स वाई क्या होगा, क्या जेड होगा, किसका वो होल स्क्वायर बनेगा। देखो सबसे पहला काम क्या करो, आप वो टर्म्स, वो 3 टर्म्स निकालो। देखो सबसे पहले क्या होता है, जिनका होल स्क्वायर आपको गिवन हो, वो 3 टर्म्स जिनका आपको होल स्क्वायर गिवन हो, अगर वो टर्म्स आपने क्लियरली फाइंड आउट कर ली, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। देखो इसके अगर हम बात करें, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, बाकी इन 3 में तो स्क्वायर नहीं है, लीव देम। ठीक है, फॉर नाउ। इसकी अगर मैं बात करूं, इसको कैसे हम होल स्क्वायर बना सकते हैं 4x स्क्वायर को। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। और x को ऐसे लिख के अगर मैं ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत? कैन आई राइट 4x स्क्वायर एज 2x होल स्क्वायर? सिमिलरली कैन आई राइट दिस 3y होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली कैन आई राइट दिस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो सारे प्लस के ले दिए, लेकिन क्वेश्चन में माइनस भी तो है। बिल्कुल है, आते हैं माइनस पे भी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पहले तो ये एक्स वाई जेड बनाना सीखो। अब आते हैं साइन पे, कि कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा। बिकॉज अगर क्वेश्चन में सारे माइनस है तो वी हैव टू टेक ऑल टर्म्स प्लस ओनली। लेकिन अगर माइनस का गिवन है तो कौन सा होगा माइनस का, एक्स माइनस का होगा, वाई की जेड, वो हम देखते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फॉर्मूला क्या, अब फॉर्मूला भी देख लो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें 2xy है नेक्स्ट। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2xy है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी के लिए हम प्लस लगा रही हूँ। 2x के प्लेस में मैंने क्या रखा है, अपना क्या माना है, ये 2x माना है ना, तो इंटू 2x, और y के प्लेस पे मैंने क्या माना है, 3y। ले लो जी, हो गया। लेकिन ये तो प्लस का ही है, चलो मैंने दोनों प्लस के रख लिए। ठीक है, अभी मैंने कोई माइनस का नहीं किया। अगर मैं 24 वाले की बात करूं, 24 वाला कैसे होगा, ये कितना साइन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ। 24 का कितना है, 24 वाई जेड पहले तो 2 ही आएगा। ठीक है, y कितना माना है मैंने, 3y, और z मैंने कितना माना है, 4z। अब जरा कैलकुलेट करके देखो क्या वापस 24 आता है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24 वाई जेड। लेकिन ये माइनस का मेरा प्लस का है, तो मैं इसको माइनस का बनाऊं कि इसको माइनस का बनाऊं, मुझे तो नहीं पता। अभी रुक जाओ, बनाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है 16 एक्स और जेड, एक्स जेड आता है साथ में। अब एक्स किसको माना, 2 तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, 2 तो होता ही है। एक्स क्या है, 2x, और जेड कितना है, 4z। क्लियर है बात? अब कैसे होगा, अब कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का, ये रहेगी बात। ठीक है, एक्स जेड और वाई जेड, इन दोनों में माइनस का साइन आता है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें भी z कॉमन है और इसमें भी z कॉमन है। बात समझ में आ रही है, इसमें भी z कॉमन है, और इस सिर्फ माइनस वाला को देखो, इसमें भी z कॉमन, इसमें भी z कॉमन। तो इजंट की माइनस का z होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे x को अगर आपने माइनस का ले लिया तो यहाँ पे भी x को माइनस का लेना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ेगा। और अगर ये माइनस का तुमने लिया तो ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, प्लस का दिया है तो माइनस का लगा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दोनों को देखो, इन दोनों में विच इज कॉमन, z इज कॉमन, तो कौन सा वाला माइनस का होगा, जो कॉमन होगा वो हमारा माइनस का होगा। इट विल बी माइनस ऑफ 4z, एंड इट विल बी माइनस ऑफ 4z। आई बात समझ में? अब अगर चेक भी करना है तो वापस जाकर देख लो। देखो 2x होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, 9 का 3 होल स्क्वायर इज 9 स्क्वायर, माइनस 4 का 16, ये प्लस का है सारा तो प्लस का, यहाँ से प्लस माइनस का 24, और यहाँ से प्लस माइनस का 16x। हो गया क्वेश्चन? बस अब लिख दो आइडेंटिटी। उल्टी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, x कितना है 2x, y कितना है 3y, और z कितना है माइनस का 4z का होल स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल्दो हमें फैक्टराइज करना है तो जस्ट राइट दिस ट्वाइस, 3x प्लस वाई जेड माइनस 4z,
and 2x plus 3y minus 4z. This is done. समझाने में टाइम लगा क्योंकि थोड़ा सा हमें उल्टा जाना पड़ता है चीजों को, लेकिन अगर आपने होल स्क्वायर वाले ढूंढ लिए और प्लस माइनस का पता चल गया तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देखिए उसको भी. लेट्स डू दैट ऑल्सो. नाउ हियर मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर. अब इसमें बोलो मैडम होल स्क्वायर बनने के कैसे बनाए. बनेंगे बेटा, बनेंगे. देखो ये तो बन जाएगा, इसको तुम लिख सकते हैं ऐसे. इसको कैसे लिखेंगे. 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का होता है. पढ़ा है 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता. होता है. किसका होता है, √2 का होता है. ऐसे इफ यू राइट √2 into √2, दिस इज व्हाट, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट विद 2 ओनली. तो जब जब ऐसा लगे कि किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा तो जस्ट थिंक अबाउट द अंडर रूट ऑल्सो. क्लियर. एज वी हैव दिस पार्ट. 8 किसी का होता है, 2 का तो हो गया कितना 4, और 3 का हो गया 9, तो बीच में 8 आया नहीं, तो 8 होता है 2 अंडर रूट 2 का. करके देखो इसका क्या होगा. सबका करता है जो ब्रैकेट में होते हैं. 2 का स्क्वायर कितना 4 और अंडर रूट 2 का 2, तो कितना आ गया 8 आ गया ना. सो दिस इज 2√2 z ऐसे ही, और ये होल स्क्वायर हो गया. बन गया क्वेश्चन. ठीक है, अब इनको तो बना लो अपने आप, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. xy या 2xy होता है तो प्लस का 2x कितना लिया है ये वाला, तो 2x और प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो रहा है इसके साथ y. ये लो मैंने y भी मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट वाला अभी मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, लगाऊंगी. yz के साथ ट्वाइस y और ये हो गया z, प्लस xz के साथ x और ये z. अब जरा वापस जाके देख लो, ये तो बन ही गया. 2√2 xy 4√2 2 into 2 4√2 yz 8xz 2 into 2 देखो 2 into 2 4 और इन दोनों को मिला के 2, तो 4 into 2 8 और ये xz. अब कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, आप देख लो फिर से. ये माइनस का है और एक ये माइनस का है. दोनों में कौन सा कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, तो x किसका होगा माइनस का. देखो ये किसका हो गया माइनस का, हो गया माइनस का साइन. इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, yz तो प्लस के है और इसमें भी ये वाला माइनस का. आई बात समझ में कैसे ढूंढना है कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा. नाउ जस्ट राइट डाउन द आइडेंटिटी. x प्लस y प्लस, अब सिंगल टर्म लिखने होते हैं यहाँ पे सारे, ये नहीं कि स्क्वायर लिख दिया साथ में. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, एंड ऑल्दो इट्स अ फैक्टराइज अगेन जस्ट सेपरेट देम. This is your answer. Fine. So very simple question. Question number 4 and question number 5. Clear है? Now move on to question number 6. Now see. Question number 6. Expand using identities. अब हम सारी आइडेंटिटीज होल स्क्वायर वाली कर चुके हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए एक्स माइनस प्लस बी. देन अभी हमने किया जो रिसेंटली दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू डू x प्लस वाई होल क्यूब एंड x माइनस वाई होल क्यूब. व्हाट वाज द आइडेंटिटी, वी हैव डिस्कस्ड द आइडेंटिटी. व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब. आई टोल्ड यू इट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3ab into a plus b, and same goes of minus sign. All the signs will be of minus this time. But the thing is xy और xy लिखो ab लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. If we come to the question, it will be what? This is my a first and this is my b second. What is that? a cube plus b cube. So it will be what? It will be a cube. मतलब अब ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो. ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्वेश्चन गलत होने वाला है, पूरा याद रखना इस बात को मेरी.
जिन बच्चों को ब्रैकेट्स लगाने की हैबिट नहीं है। ये लो जी, मैंने आइडेंटिटी कर दी अप्लाई, जो यहाँ लिखा था ए बी और की जगह रख दिया मैंने सब कुछ। नाउ जस्ट ओपन इट। 2 का क्यूब, क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8 एक्स का एक्स क्यूब, 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस ये कितना हो गया? 6x, और ये कितना है? 2x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया? इस ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? इसको सबसे एक बार इससे करेंगे तो 12x² और एक बार इससे करेंगे तो प्लस 6x। ब्रैकेट तो ओपन करनी आती है ना, ये नहीं आती। क्लियर है? इफ वी मूव ऑन टू दिस पार्ट, 3/2x प्लस 1। सेकेंड पार्ट आप लोग कर लेना खुद से। 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, व्हाट इट विल बी? दिस इज a now and this is b. Clear है? What will be a cube? 3/2x whole cube, b whole cube, 3ab और a प्लस b इनसाइड। पहले तो लिख लो पूरे को, उसके बाद सॉल्व करो। What it will be now? 3 का क्यूब जैसे स्क्वायर होता है सबका, ऐसे क्यूब भी सबका होगा। 3 का क्यूब 27, 2 का 8, x का x क्यूब प्लस 1 का 1, 3 3 9 डिवाइड बाय 2, x तो बाहर, और अब ब्रैकेट को करेंगे दूसरे स्टेप में सॉल्व। एक साथ करना है, कर लेना। ये थोड़ा सा रुक के चलो, ज्यादा तेज भागोगे तो भी गिर जाओगे, ठीक है? इसके साथ इसको करो पहले तो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 27, x के साथ x किया तो x² और 2 के साथ 2 किया तो 4। न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर प्लस। अब इस पूरे को 1 से भी करना है तो 1 से करोगे तो इट विल रिमेन सेम। सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आई विल लेफ्ट फॉर यू, दैट विल यू डू योरसेल्फ। इसका लास्ट पार्ट भी मैं कर देती हूँ, ठीक है? Then you will not have any complaint कि हमको ये नहीं आता और मैडम ने तो भाई इजी पार्ट्स कर दिए और हमें टफ दे दिए करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये लो, इस बार a माइनस बी का लगेगा। फर्स्ट वाला हो गया a, ठीक है, और दूसरे वाला हो गया b, ठीक है? अब माइनस मत देखना क्योंकि हम माइनस ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं इसमें। सो व्हाट इट विल बी? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू x माइनस 2/3 y, मतलब a माइनस b। क्लियर है बात? नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड एक्सपेंड योर ब्रैकेट्स। व्हाट इट विल बी? इट विल बी x क्यूब माइनस 8 divided by 27 y cube minus, this will cancel out, so we are left with 2 xy only, and inside we have x minus 2/3y. So if we open the bracket, it will be x cube, this will remain as it is, and this will be 2x² y and plus 4/3 xy square. Very simple way to do the questions, very simple way. In 2 steps you got your answer. एक्सपेंड का भी आपका 3, देखो एक्सपेंड भी आपको 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। व्हेन यू फैक्टराइज ऑल्सो, तब भी आपका 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बात? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. Now we move on to question number 7. C. Evaluate using the identities 99 whole cube and this is 102 whole cube. इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2, रिमेम्बर? वहां पे भी हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना इनको कि आपने 102 इंटू 102 करके आंसर लिख दिया, यू विल गेट 0 मार्क्स. सो व्हाट इट विल बी, यू हैव टू यूज योर आइडेंटिटी. सो क्यूब लगा है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी, और तो क्यूब की कोई नहीं होती.
हाउ वी कैन राइट 99? वी कैन राइट दिस 100 माइनस 1 का होल क्यूब. ठीक है, अब तो आता है करना. अब क्या होगा, 100 का क्यूब क्या होगा, ये वाली सेकेंड वाली लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. क्लियर है? व्हाट इट विल बी, ये कितना हो गया, 4 5 6 माइनस 1, दिस इज 300 एंड दिस इज 99. 99 कर लो. सो 6 माइनस 1 माइनस कितना हो गया ये, और ये भी नहीं करना ना आपने, अगर तो आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते हो. कैसे, जैसे हम ओपन द ब्रैकेट करते हैं, इसके साथ पहले ये और माइनस माइनस प्लस करके 300 के साथ 1, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं हो रहा तो. और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 00 00 और ये प्लस का 300. क्लियर है बात? अब कर लो सॉल्व इसको. कितना आएगा, इसमें से क्या क्या माइनस करना है मैंने, 1 2 3 4, एक तो ये माइनस करना है, कितना बचा 0 0 0 0, दिस इज 7 9. एक माइनस 1 भी करना है इसमें से, तो कितना आएगा 9 9 9 9 6 9, और इसमें क्या ऐड कर देना, मैंने ऐड कर देना 300. कितना हो गया ये 9 9 2 0 7 9. चेक कर लो जरा, मैंने प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं की है. क्लियर है बात? क्लियर है बात? सो दिस वाज माइनस. सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है प्लस का, 102 होल क्यूब. सी दिस, नाउ वी सी 102 होल क्यूब. व्हाट इट कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज 100 plus 2 whole cube. This time I have to apply the identity of plus sign. What it will be, 100 cube plus 2 cube plus 3 into 100 into 2, and this is 100 plus 2. Clear है? Just open it. This will be what, double double double, 3 बार आएगा क्योंकि 3 क्यूब कर रहे हैं. This will be plus, all the सारे प्लस आए हैं तो we have to just add. ये कितना हो गया 600 into एक बार कितना 100 और प्लस 600 के साथ फिर से क्या ट्वाइस. मैंने डायरेक्टली लिख दिया. ठीक है, नाउ इट विल बी व्हाट, ये लो प्लस 8, ये कितना हो गया 00 00, और ये कितना हो गया 1200. ठीक है, इसमें 8 जोड़ दिया तो जोड़ के देख लो, सारे एक साथ जोड़ लो बस. 8 और ये 00 वाला, 1 2 3 4 6, 1 2 2 1, और ये लास्ट में 8. ऐड करना तो आता है ना. अब ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, दिस इज 1, दिस इज 6, 0 बचा और ये 1. दिस इज योर आंसर ऑफ 102 होल क्यूब. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आंसर. मैंने बोला था मैक्सिमम 3 steps you will go to your answer directly. So this was your question number 7. Expand the identities. Clear? Now we move on to the next question. Now the last topic, last question of today's class. बाकी तो बचे हुए हैं अभी, ये मैं सोच रहा खत्म हो गए, बचे हुए हैं अभी सारे. आज खत्म नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना आप भी बोर हो जाओगे. वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि आपको चेक करना है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट है, राइट इक्वल टू लेफ्ट है. हाउ विल यू डू, अगर हम लेफ्ट उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, क्या आपको, आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को. कुछ फॉर्मूला पता है? नहीं पता ना, तो स्टार्ट विद योर राइट क्यूब. 2 ब्रैकेट से दोनों को सॉल्व करके कुछ तो निकलेगा. बात समझ में आती है? तो टेक योर राइट हैंड साइड, इट विल बी व्हाट, x plus y of x square minus xy plus y square. Is it clear है? If we open it, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, पहले x के साथ इस पूरे को करेंगे और फिर y के साथ इस पूरे को करेंगे. ठीक है, तो x के साथ अगर करें तो लिख लेते हैं पहले, और सिमिलरली y के साथ करें, ये है. नाउ ओपन द ब्रैकेट. अब कैसे करें, x के साथ पूरा ब्रैकेट को x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, इसके साथ
साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इसके साथ प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। नाउ एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू, वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब यहाँ से और यहाँ से प्लस का वाई क्यूब। So this is nothing but your left hand side. So this is the verification, and not only the verification, these are the your standard formulas. You can use them directly. Formula है आपके x a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, मैंने अभी एक वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझाई थी, मैंने उसमें भी ये वीडियोस ये वाले फॉर्मूलेज इंक्लूड किए थे। आप उसका शेयर, आपका उसका लिंक आप मेरी वीडियो में देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से। अलग से मैंने उसमें सिर्फ आइडेंटिटी समझाई और कुछ नहीं किया और कोई क्वेश्चन नहीं समझाया अलग से। ठीक है, इस पे आता है द सेम प्रोसेस विल डू हियर ऑल्सो राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट से तो कुछ नहीं कर सकते। करें तो कितना आएगा, इफ यू ओपन अगेन इट, एक्स के साथ पूरा ब्रैकेट, फिर वाई के साथ पूरा ब्रैकेट, प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना वरना क्वेश्चन हो जाने वाला है गलत। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दिस विल बी एक्स क्यूब। जब सारे प्लस के हैं तो डोंट वरी, लगाते जाओ आंख बंद करके प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब आता है माइनस पे, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो वाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, माइनस वाई प्लस, तो माइनस एक्स वाई यहाँ पे वाई यहाँ पे, एक्स तो सिंगल है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई क्यूब। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये प्लस का और ये माइनस का। What we are left with just x cube minus y cube, which is our left hand side. Clear? So this was your exercise 2.5 chapter 2 polynomials class 9th, and this was question number 9. We are left with still more questions, question number 10, 11, 12, 13, 14, 15, that we will do in the next class. So if you like this, share it with your friends. Comment any suggestion, any improvement, any complaint, anything it can be, any कुछ भी आप जो भी आप आंसर्स करते हो उनके आपको कुछ गलत लगता है वो सब, अदरवाइज एंड शेयर द, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच।